Everybody, and welcome back to Lit Up with Annie to yet another lecture on non fiction writers. So, this will be our fourth lecture in the series of non fiction writings. If any one of you is interested in the full course, do join. We are doing your Unit 2 poetry. We have reached romantic age right now. You will get access to all the classes that we have covered before, so you can join and have a very good preparation. We are also doing MCQs alongside. ठीक है, तो Jeremy Collier is the next writer that we are going to do. So last में हमने first फ्रांसिस बेकन से स्टार्ट किया था, then we talked about the translation of Bible, and and yesterday we talked about the diarists. The diarists also belong to the Restoration age. Jeremy Collier is also from the same age. ठीक है, अब जेरेमी कॉलियर का एक ही वर्क है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका शॉर्ट व्यू ऑफ immorality and profaneness of the English stage. जेरेमी कॉलियर को एक क्रिटिक की तरह हम लोग यूजुअली देखते हैं, जिन्होंने पूरा हाथ जोर लगा दिया censorship लाने के लिए. Now you all know Restoration age में the kind of plays that were staged, right? It had a lot of vulgarity, it had lots and lots of profaneness, and वो बढ़ता ही जा रहा था. ठीक है, some of the critics thought that it was not good for the society to view such things because they will eventually imitate all of that in their own lives. So Jeremy Collier was one such critic. He was also a clergyman, a religious person, non-juror, and he was a moralist. ठीक है, तो इन्होंने पूरा जोर लगाया. He was disgusted by some of the works, for example, Van Brau के works, or so many others. Now remember one thing: the best known work of the Restoration age is The Way of the World. Way of the World बाद में आता है. 1700 is the publishing date of The Way of the World, and this was published in 1698. ठीक है, so remember that. Let's read. His non-fiction prose is rooted in the Augustan age's moral seriousness. Although Jeremy Collier is born in 1650 and he passed away in 1726, so Restoration age तो है ही है, और Augustan age, the early Augustan age is also there, so somewhere in between. जो ऑगस्टन एज का सीरियसनेस था, मोरालिटी थी, वो सब हमें जेरेमी कॉलियर के वर्क्स में देखने को मिलता है, contrasting with the liberty and wit of Restoration comedy. Right? He was not a dramatist or poet, but a moral essayist, a polemicist, and religious controversialist. Lots and lots of debates, polemics. Polemics क्या होते हैं? वही debate kind of a writing. Shaping early 18th century critical thought. Early 18th century आप Augustan age कह लो, जितना भी critical thought था या late Restoration age का पूरा thought process था, critical thought process था, उस सब को shape किया जेरेमी कॉलियर की writing में. Restoration England 1660 onwards had seen the flourishing of Restoration comedy, which was very witty, जो बहुत satirical थी और बहुत licentious थी. Writers like Congreve, Wycherley, Van Brau, Dryden portrayed love and intrigue in ways seen as morally corrupt. Now remember, Dryden जो हैं वो मुझे तो बहुत ही misfit लगते हैं यहाँ पे. क्यों वो Restoration age में आ गया? I think he should have been born along with Pope in the Augustan age. But yeah, he tried to, even in such an age जहाँ पे बिल्कुल ही अलग तरह की writings थी, ये ऐसे डटे रहे कि एज को ही हम कई बार एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं. तो ड्राइडन ने पूरा का पूरा जो चल रहा था, जो स्टाइल था, जो वे था राइटिंग का, उसको अडेप्ट किया. इन्होंने ट्रेजेडीज़ भी लिखी, इन्होंने अपना कॉमेडीज़ भी लिखी, रेस्टोरेशन स्टाइल में भी कॉमेडीज़ लिखी. ठीक है, तो ये सारे राइटर्स मेन राइटर्स हैं रेस्टोरेशन एज के. एंड कॉनग्रीव, वाइशरली, वैन ब्राउ, मोर ऑफ कोर्स मॉरली करप्ट.
तो कॉलियर जो एक नॉन ज्यूरर क्लर्जी मैन थे, ही रिफ्यूज टू स्वेयर अलीजियंस टू विलियम एंड मैरी आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन. ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसमें किंग जेम्स को बाहर कर दिया था, उसके बाद विलियम और मैरी थ्रोन पे आए. तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं अलीजियंस दूंगा. इट वॉज ऑल रिलीजियस, ठीक है, क्योंकि वो कैथलिक थे. बिलीव सोसाइटी वॉज स्लिपिंग इन टू अ मॉरल एंड रिलीजियस डिक्लाइन. तो दिस वॉज द बिलीफ ऑफ जेरेमी कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो मॉरली करप्ट होती जा रही है, रिलीजियसली इट इज़ डिक्लाइनिंग. सो हिज नॉन फिक्शन इमर्जेस एज अ reactionary force against this cultural climate. Major work is A Short View of Immorality and Profaneness of the English Stage. He wanted to talk about this, the profaneness, the immorality of the English stage at that point of time. So what was the aim and purpose? It was to expose जितना भी indecency था. इतने love affairs दिखाते थे ये लोग. Even the elderly women who were mostly widowed, they were very wealthy. They wanted to woo some young man, a man who was having multiple affairs, this and that. Everybody was having so many affairs. It was very indecent. The talks were very open, we can say, very sexually intriguing. So he wanted to expose all of that, the profanity, the irreligion in the contemporary drama. So to argue, even the aim was to argue that theatre, instead of reforming morals, as Aristotle and Horace suggested, was corrupting public virtue. जैसे कि एरिस्टोटल होरेस ने कहा था कि जो भी ड्रामा है, जो थिएटर है, वो लोगों को कुछ तो अच्छा दे, पढ़ाए, इट शुड टीच, इट शुड प्लीज एंड टीच. लेकिन ये वाला जो थिएटर था, इट वॉज करप्टिंग द पब्लिक वैल्यू टू शो दैट ड्रामेटिस्ट्स वायलेटेड बोथ पोएटिक रूल्स एंड क्रिश्चियन एथिक्स. सो इवन ही वांटेड टू शो कि जितने भी ड्रामेटिस्ट्स हैं वो सारे के सारे रूल्स को भंग कर रहे हैं, क्रिश्चियन एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे हैं. तो व्हाट वाज हिज आर्ग्यूमेंट? नंबर 1, प्रोफेनिटी, कि प्लेस जो हैं वो गॉड का नेम बस एवं ही ले लेते हैं, इन वेन, मॉक्ड द क्लर्जी, ridiculed sacred institutions. Actually, it was a very big satire. जो रेस्टोरेशन कॉमेडी था वो सटायराइज कर रहे थे सोसाइटी को, क्लर्जी को, इंस्टीट्यूशंस को, विच वॉज ओके, ठीक है. द लैंग्वेज वॉज प्रोफेन, इट वॉज ऑल ऑफ दैट सेक्शुअल इंट्रीग वॉज देयर. हाउएवर इट वॉज क्रिटिकिंग द सोसाइटी. पॉइंट नंबर 2, इमोरलिटी. तो रेस्टोरेशन कॉमेडी ने नॉर्मलाइज कर दिया अडल्ट्री को, क्योंकि हर एक बंदे का अफेयर है, मैरिड पीपल having extramarital affairs. So it normalized adultery, seduction and sexual vice. Third, ridicule of virtue. So chaste or religious characters were often made ridiculous. जितने भी ऐसे characters हैं which were religious characters, उनको किसी ना किसी तरह से ridicule किया गया है, while witty libertines were glorified. Fourth, violation of decorum. The stage, traditionally seen as a medium of instruction, had instead become a school of lewdness. It was violating the decorum. Target. इन्होंने किस किस को अटैक किया? अब ये यहाँ से काट दो, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में इसको क्लैरिफाई किया. वे ऑफ द वर्ल्ड अभी पब्लिश भी नहीं हुआ था. इनका जो मेजर अटैक था वो था वैन ब्राउ, सर जॉन वैन ब्राउ, द रिलैप्स, द प्रोवोक्ड वाइफ. टॉमस को भी इन्होंने किया था, द फॉन्ड हस्बैंड एंड अदर्स. ही इवन क्वेश्चनड फ्यू ड्राइडन्स प्लेस बट नॉट सिवियरली क्रिटिसाइज्ड. ही सिवियरली क्रिटिसाइज्ड वैन ब्राउ, वाई शर्लीज पे. इन दोनों को बहुत अच्छे से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया. तो कॉलियर का जो स्टाइल था वो पॉलेमिकल है, प्लेन है और डायरेक्ट है. नॉट विटी और ऑर्नेट लाइक एडिसन्स, बट वेरी सीरियस, वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव. इट इज़ फिल्ड विद बिब्लिकल रेफरेंसेज एंड moral earnestness. He uses examples from specific plays followed by didactic moral commentary. Collier के जो और non-fiction works हैं वो हैं essays on several moral subjects. However, they were not very important or famous, I would say. पर लिखे तो हैं. A series of moral essays on Christian conduct, very religious. Virtue, piety पे इन्होंने लिखा. Very similar in tone. ठीक है. To what?
टू द पीरियोडिकल एसेज ऑफ स्टील एंड एडिसन, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, एडिसन और स्टील की बात, जो ऑगस्टिन एज के मेजर नॉन फिक्शन राइटर्स आएंगे, बट मोर सिवियर इन मॉरल आउटलुक। तो जेरेमी का ज़्यादा मॉरल आउटलुक है, स्टील और एडिसन का इतना भी मोरालिटी पे ध्यान नहीं है। फिर एनोटेशंस ऑन होली बाइबल, ये भी काम है, एक कॉमेंट्री इन्होंने लिखी थी रिफ्लेक्टिंग हिज डीप रिलीजियस एंगेजमेंट। दैन एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, 2 वॉल्यूम्स में, इट्स अ मैसिव हिस्टोरिकल एंड थियोलॉजिकल स्टडी रिफ्लेक्टिंग हिज रोल एज अ क्लर्जीमैन एंड चर्च हिस्टोरियन। So Collier stands between the polemical religious prose of the 17th century, जिसमें जैसे मिल्टन के पैम्फलेट्स प्यूरिटन मॉरलिज्म था, और ऑगस्टिन का मॉरल एसेज जैसे एडिसन और स्टील का था। अनलाइक एडिसन हु यूज्ड जेंटल परस्यूएशन, अर्बेन स्टाइल, कॉलियर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वेरी स्टर्न, पूरा अटैक मोड। हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक ओपिनियन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। इनकी वजह से, मतलब ठीक है, इनका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट रहा फर्दर ऑन, जब वो भी आया, लाइसेंसिंग आया, एक्ट आया, और जो रेस्टोरेशन कॉमेडी का भी डिक्लाइन हुआ, हिज वर्क मैटर्ड। सो बाय द अर्ली 18th century द स्टेज बिकेम मोर सेंटिमेंटल एंड मॉरल। अब आप देखोगे ही 18th century में क्या हुआ ऑगस्टिन एज में। दस कॉलियर्स नॉन फिक्शन moral critique shaped literary history, making him a key moralist of his age. इनका जो अटैक था, इट प्रोवोक्ड फियर्स रिप्लाईज ऑल्सो। बहुत लोगों ने डिफेंड भी किया, जैसे कॉनग्रीव ने डिफेंड किया इन अमेंडमेंट्स ऑफ मिस्टर कॉलियर्स फॉल्स एंड इम्परफेक्ट साइटेशंस। वैन ब्राउ और डेनिस ने भी रिस्पॉन्ड किया। येट पब्लिक सिंपथी जो थी वो कॉलियर के साथ थी, एज द टाइड ऑफ मोरालिटी टर्न्ड इन हिज फेवर। Dr. Johnson later remarked that though Collier was too severe, his arguments could not be easily refuted. The way he has presented, society को ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को नकारा नहीं जा सकता था, ठीक है। So Jeremy Collier as a non-fiction writer is remembered not for the elegance or literary grace, but for moral earnestness, polemical clarity, historical impact. इनका जो शॉर्ट व्यू है, इट स्टैंड्स एज अ लैंडमार्क इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल हिस्ट्री। क्रिटिसिज्म में भी पढ़ सकते हो इसको, आप नॉन फिक्शन में भी पढ़ सकते हो। सिग्नलिंग द शिफ्ट फ्रॉम रेस्टोरेशन लिबर्टनिज्म टू ऑगस्टिन मॉरल सीरियसनेस, एंड ही रिप्रेजेंट्स द डाइडैक्टिक फंक्शन जो है लिटरेचर का, कि लिटरेचर को सर्व करना चाहिए वर्च्यू को, रिलीजन को और सोसाइटी को, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट जेरेमी कॉलियर, वेरी शॉर्ट, सिंपल, एंड यू शुड ऑल नो, यू शुड ऑल हैव इट इन माइंड। डेट्स ध्यान रखो, और कब ये पब्लिश हुआ है, ठीक है, कब जेरेमी, वेयर डज ही फॉल इन द क्रोनोलॉजी, एंड ऑल्सो किस किस को इन्होंने अटैक किया है, तो वो चीज़ें आपने देखनी है। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन किस किस को इन्होंने अटैक किया है, अगर आप कहीं से कोट्स लाओगे तो और भी अच्छा। Thank you. See you in the next one. If you wish to join the classes, get in touch with me. The details are in the description box. Join our group, by the way. Telegram पे हमारा ग्रुप है NTA English Preparation, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, तो वो आप ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम पे आई कीप पोस्टिंग अ फ्यू शॉर्ट वीडियोज़, इंटरेस्टिंग लिटरेचर स्टफ, lit up with Annie on Instagram. So go and check that out as well. Thank you.